My humble salutations at the lotus feet of Ma Saraswati, Lord Srinathji, and my respected father Sri Om Prakash Suriji, whose blessings we feel every moment in our life. His life lessons of courage, self belief, hard work, and the can do spirit inspires and motivates us to excel in our life. My respected mother, Honorable Srimati Nirmal Suriji, very reverential chief guest of the evening, member of the Parliamentary Board and Central Election Committee of the BJP, ex-Union Minister of India, Honorable Dr. Satyanarayan Jatiaji, who is a noble personality and has inspired millions of people of our country to become better human beings. Our source of energy, my respected elder brother, Honorable Sri Sumit Suriji, helping son Jairaj, our eminent and learned members of the advisory board, experienced and learned academic director Sri S.N. Patwardhan sir, hardworking principal Satish Niranjani ji, respected teachers, heads of various play schools, distinguished parents and grandparents of students, loving students, and the laborious admin team of the Omni School. Today I am feeling a sense of divinity in the air surrounding the beautiful campus of the Omni School, and surely it is because of the positivity that has been created by the temple of Lord Srinathji and Samadhi Sthal of our beloved father, the founding chairman of the Omni Group, Sri Om Prakash Suriji. I am sure that the newly constructed Omni Center of Values and Thoughts will inspire everyone to create the right kind of thoughts and manifest them into a reality, so that the students of the Omni School become torch bearers of a better tomorrow. The orchestra team has given a wonderful and impressive start to the annual day celebration, and I am sure that this cultural fiesta will bring joy to all the parents and teachers when they will watch their children performing so well. Although the mood today is of celebration with dance, music and culture, but I take this opportunity to say a few words. The wonderful qualities that we all have seen in the beginning of today's program and will see in the later part speak to what is important in the 21st century. The days when education was restricted to mugging up textbooks, reciting it to the teachers, and reiterating the same in examinations. Those days are over now. The truth is creativity, attractive presentation, a mastery of the issues that you are thinking and doing, and an ability to convey it to others. All hallmarks of what we have seen in the function so far and will see in the second half is really what you need in the 21st century. That is the reason I tell to teachers, not only teach the students what to think, but also teach them how to think, so that they can meet any unexpected challenge or uncertainty in their life. The Omni School will make sure that it will empower the mind of every student in order to enrich their lives. Even the new education policy, which has been launched recently by the central government, and our honorable chief guest, Dr. Satyanarayan Jatiaji, has given immense contribution in the development of that education policy. It focuses on a skill-based practical learning system to make the students employable in the 21st century. This year has been very special to us, as after experiencing tough pandemic situation, we operated the school physically from the campus. We started the online teaching
Within a period of 7 days, when the Janta curfew was announced by Honorable Prime Minister, the transition from online to hybrid and now to fully physical is quite smooth and successful. Also, this year is very special to us as we inaugurated our new sporting arena Olympus. This is developed in the area which was expanded in the pre-pandemic period. It will certainly improve the sporting skills of our students, which in turn will lead to the improvement in their physical and mental health. Programs related to yoga and psychosomatic health shall be extended. Our Honorable Advisory Board member, Dr. B.K. Bandre, who is with us, is taking personal care that our students do well, and they have done so by winning records and world championships. In our constant effort to provide the widest of challenges and toughest of platforms, in our constant endeavor to provide widest of platforms and toughest of challenges to our students, we are constantly evaluating the latest techniques for making our teachers and students more efficient. And I am very happy to announce that from the next academic session, we will be having Android televisions in all classes for all students. We believe that not only a healthy student-teacher ratio is important, but also a healthy student-infra ratio is important. So the capacity, student strength in the school will be enhanced in a calibrated manner. My another advice is that school, as we have seen, is not only a place where children study, it is a place where children grow. And since the Omni school has classes from kindergarten all the way to class 12th, they spend more productive hours in the school than they spend with their parents. It is in the school that they learn how to get along with others, how to behave with youngers and elders, how to respectfully but with intelligence question their teachers, how to deal with authority when it is imposed over them, and how to tackle authority when they rise and shine like a head boy or a head girl. The Omni School focuses on imparting values to the students, values of compassion, gratitude, a sense of responsibility for the society, and care for the environment, thereby providing them an environment which is conducive for their holistic growth. While appreciating all the parents for their full faith in the school, I would request all parents who are also the driving force behind the students of the Omni School to work in line with the school and make sure that the holistic education of students get completed. Parents must understand that an addiction to distraction leads to the end of creative production in a child. Hence, every parent in line with the school must aim to prevent their children from getting distracted and focus towards their goals. On behalf of the Omni Group, I extend gratitude from bottom of my heart to our Honorable Chief Guest, Member of the Parliamentary Board, which is the supreme authority of the country, Central Election Committee of BJP, Honorable Dr. Satyanarayan Jatia, for blessing our students. With blessings of such dignified personalities, I am not only hopeful but confident that our students who have been outperforming in various inter-school competitions will outperform in all walks of life, and this institution shall be available for their hand-holding whenever and wherever they'll go. Our school name Omni, which is synonym of being everyone and everywhere, follows the path of Omniism, which is the feeling of respect towards every human being, irrespective of its caste, color, culture, and creed. And I am quite happy that our students, the Omnists, they all are working in this direction. With the judicious blend of worldly knowledge and the core human values inculcated in them, I can surely say that the sons of Omni will paint the sky and the daughters of Omni will touch the stars. Once again, with great satisfaction and pride, I wish you all a good annual day celebration which you will cherish for the life,
and also good times ahead in your life. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, sir, for sharing your precious thoughts to us. सबसे पहले मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मैं पत्थर था, मुझे मूर्ति बनाने वाले वो शिल्पकार हैं। मेरी हर तारीफ के असली मेरे माता पिता हकदार हैं। असल में ये तारीफ मेरी नहीं, मेरे संस्कारों की या मेरे माता पिता की है। और ये मान करके चलता हूँ कि मैं शायद कुछ भी ना होता अगर वो मेरे साथ ना होते। और ऐसा मेरे लिए नहीं, हर पुत्र के लिए, हर बेटी के लिए अगर कोई किसी तरीके से कोई कुछ कर सकता है तो उसके माता पिता कर सकते हैं, और कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ मौजूद हर माता पिता, दादा दादी, सबको एक बार बोलता हूँ अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया। परम आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यूँ कहें तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए सर्वोच्च पद होता है किसी भी पार्टी की इलेक्शन कमेटी में जाना या संसदीय बोर्ड में जाना। और आज आपकी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक कटनी में चल रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। पर मेरे आग्रह पे हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि पहले इनका समय तय हो चुका था कि आपको यहाँ आना है, तो मैं उनके वायदे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ा। जो आज प्रदेश की कार्य समिति चल रही है, उस कार्य समिति बैठक के ऊपर चूँकि आपका यहाँ कमिटमेंट था, बच्चों से वायदा था कि वो यहाँ आएंगे, तो आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पधारे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत कृतज्ञ हूँ, बच्चों की तरफ से आपको अभिवादन करता हूँ। आप परिवार के सदस्य तो हैं ही, पर देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपने अपना वायदा जिस हिसाब से निभाते रहें उसकी एक बड़ी अच्छी पहचान इस कार्यक्रम से यहाँ समझ में आती है। सभी पालकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है किसी स्कूल का वार्षिक उत्सव होना, तो आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आपके बच्चे परफॉर्म करते हैं, पर हाँ बहुत छोटी छोटी सी बातें रहती हैं जो आपको हमको एक दूसरे को पता होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। होता क्या है कि अपेक्षा एक बहुत छोटी सी चीज़ कमी से जन्म लेती है। अपेक्षा एक कमी से जन्म लेती है और दूसरी बहुत बड़ी कमी को जन्म देती है। अगर मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपसे मेरा संबंध हो जाए, तो ये एक कमी है मेरे पास किसी संबंध की, और मैं उस अपेक्षा करूँगा कि आपसे मेरा संबंध हो जाए। संबंध होते ही मेरी अगली अपेक्षा इससे बड़ी जन्म ले लेती कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें, आप ये करें ये ना करें, ऐसा करें बोलें ना बोलें। तो अपेक्षा एक कमी से जन्म लेती है और एक बहुत बड़ी कमी को जन्म देती है। तो हमें हमारे बच्चों से बहुत लिमिटेड अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऐसा मैं चूँकि स्कूल के मंच पे खड़े होकर के बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बच्चों के लिए आपसे ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बच्चों से हमें ऐसी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं बदलाव या परिवर्तन देखने को मिले। स्कूल अपनी जगह पूरी शिक्षा का ध्यान रखता है। आप स्कूल के साथ मिलकर के चलते रहें तभी साथ में हैं। स्कूल हर स्तर पे बच्चों को लेकर के आगे बढ़ाएगा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराएगा। आज बाबूजी यहाँ हैं, मैं मान के चलता हूँ कि बाबूजी मेरे साथ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ नहीं है। मैंने बाबूजी के नाम के आगे लेट लगाया ही नहीं। मेरा अभी किसी एक विषय पे बहुत ज़ोर से किसी बड़े अधिकारी से विवाद हो गया था एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कि उनका कहना था कि आपको नाम के आगे ये लेट लिखना चाहिए था।
पर मैंने नहीं लिखा, और मैं प्रत्यक्ष रूप से ये मान के चलता हूँ कि वो मेरे साथ हर क्षण हर वक्त साथ रह रहे हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। ये मेरी ज़िद है और ये जुनून है कि मैं उनको जीऊँगा अपने अंदर, और उनसे जो वायदा किया है, क्योंकि इस स्कूल में ये उनकी पहली खरीदी हुई ज़मीन थी, तो अब इस स्कूल के प्रति जो मेरी जवाबदारी और दायित्व है वो और बढ़ गया है। मैं आपके लिए और ज़्यादा उत्तरदायी हो गया हूँ। आप मेरे से कुछ भी चीज़ जो आपके बच्चों से संबंधित आपको लगती है, क्योंकि अब ये ज़मीन मेरे लिए यज्ञशाला के रूप में हो गई है, ये जगह मेरी यज्ञशाला हो गई है। यहाँ से मैं जो भी आहुति दूंगा वो आपके, मेरे, हम सब के बच्चों के भविष्य के लिए रहेगी। मैं वायदा करता हूँ कि यहाँ से ऐसे लोग निकालूंगा, ऐसे बच्चे निकाल के दूंगा, उनमें ऐसे संस्कार होंगे, ऐसे उनके अंदर रीति रिवाज का पालन होगा, ऐसी भारतीयता होगी कि देश में नहीं विश्व में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे। ये मेरा सभी पालकों से वायदा है। आप मेरा साथ दीजिएगा इस चीज़ पे। मैं इसमें आपके साथ की अपेक्षा कर रहा हूँ। मेरे को किसी भी तरीके से आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को आपका साथ चाहिए। कोविड जैसे टफ टाइम में आप हमारे साथ खड़े रहे, हमारी पूरी शिक्षकों की टीम साथ में खड़ी रही। कोई भी शिक्षक, दीदी, भैया, सपोर्ट स्टाफ मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे से अलग है। हम लोगों ने बहुत कठिन समय निकाला कोविड में, पर मैं बहुत फ़क्र से कहूँगा कि मेरे पालक भी बहुत अच्छे हैं। एक भी पेरेंट के साथ इतने सारे स्कूल की समस्या सुनने को मिली, इतने स्कूल में जगह जगह नोटिसेस गए, कहीं स्कूल के विरोध में पेरेंट खड़े हुए, पेरेंट्स के विरोध में स्कूल खड़ा हुआ, पर मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे और मेरे स्कूल का स्टाफ ना मेरे अगेंस्ट गया ना मैं उनके अगेंस्ट गया। तो मैं इस मंच से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। छोटी छोटी बातें रहती हैं, हम जो ज़िंदगी में खुद करें, हम बच्चों के साथ जैसा रहते हैं वैसा आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप हर क्षण बच्चे की नज़र में हैं, आप जो कर रहे हैं बच्चे की नज़र आप पे है। आप बच्चे के रियल हीरो हैं। बच्चे का अगर असली कोई हीरो है तो वो उसके माता पिता हैं। ये जो टीवी कलाकार और ये सब दिखते हैं, ये असल हीरो नहीं हैं, ये लोग क्षणिक हैं। पर हमारे यहाँ ये धीरे धीरे से कब्जा करते जा रहे हैं हमारे बच्चों की मानसिकता पे। मैं बच्चों को प्रयास करके ये सिखा रहा हूँ कि उनके असली हीरो उनके माता पिता हैं, उनके गुरुवर हैं। तो आपका खुद का अच्छा होना, आपका बच्चों के लिए रियल हीरो होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल अछूते ना रहें। जब बच्चा आपसे कोई बात करता है तो आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे बात करते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो बच्चा आगे जाके कैसा बनेगा। बच्चा अपने आप नहीं बनता, बच्चे का निर्माण आप और हम मिल करके कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने मुझे जिस शिद्दत से पाला, मेरी माँ ने मुझे जिस शिद्दत से पाला, उसका नतीजा मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पर मैं उनकी परवरिश का ही एक सफल उदाहरण हूँ या असफल उदाहरण हूँ। ऐसा ही हर बालक यहाँ खड़ा होगा। मंच के इस तरफ जब आपके बच्चे खड़े होंगे, उस दिन मैं वहाँ बैठ करके ताली बजा रहा हूँगा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँगा कि हाँ, ये मेरे स्कूल का बच्चा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चों की हर गतिविधि को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए और अपनी गतिविधि को इस तरीके से जिए कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जिस रास्ते आप चलेंगे उसी रास्ते वो बच्चे चलेंगे। बहुत ज़्यादा आजकल हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचना एक प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को लगती है। तो ये ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? ओवर इन्फॉर्मेशन से। बहुत ज़्यादा सूचना आप लोगों के लिए हानिकारक है, आपके बच्चों के लिए हानिकारक है। हमें प्रयास करना है कि हम हमारे मोबाइल का लिमिटेड उपयोग करें। किसी के पास अगर खाली समय है तो वो बैठ कर के मोबाइल में स्क्रॉलिंग करता रहेगा, दिन भर कुछ ना कुछ देखता रहेगा। वो उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। आपको लग रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ले ली, क्योंकि मोबाइल में हर क्षण हर मिनट इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे पे भारी पड़ रही है, आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी और आपकी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं
कि हाँ मेरा बेटा भी ये करेगा, मेरी बेटी भी ये करेगी, या मुझे ऐसा करना चाहिए, और उसी क्षण अगर वो बच्चा बीच में आ जाता है बात करने के लिए तो आप उसको इरिटेट होकर जवाब दे देते हैं, क्योंकि आप आपकी मोबाइल की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो हमारे को हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में अपने आप को अपने परिवार की तरफ केंद्रित करना है, अपने बच्चों की तरफ केंद्रित करना है। जो हम करना चाह रहे हैं वो उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं कि वो वैसे रहें, वैसा आचरण हमको करना है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे प्यार से बात करे, तो पहले आप उससे प्यार से बात करें। कभी कभार उसके साथ ऐसा कोई पल बिताएं जिसके लिए आप मना करते हैं। आइसक्रीम खाने के लिए मना करते हैं तो कभी आगे रह के कहते हैं कि चल यार बेटा आज आइसक्रीम खा लेते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। कोशिश करिए कि उसके साथ एक दोस्त की माफिक रहने का प्रयास करें, कि आप बच्चे के साथ एक दोस्त की माफिक रहें। आप अपने बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं आज अपने पिता के सख्त होने के कारण ही कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पिता ने बहुत सख्ती से मेरा परवरिश करी। मैं 50 वर्ष की आयु में भी अपने पिताजी से पूछे बगैर एक भी मूवी, एक भी पिक्चर देखने नहीं गया, और ना ही अभी मौका पड़े तो मैं जा सकता हूँ। मैं आज भी, वो हैं या ना हैं, पर मैं उनसे इजाज़त लेकर के, उनसे बात करके ही कोई काम करता रहा हूँ। तो आज मैं अगर कहीं सफल हूँ और कमज़ोर नहीं हूँ तो मेरे पिताजी की सख्ती के कारण ही मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैं चाहूँगा आप भी अपने बच्चे के साथ मोहब्बत खूब रखें, प्यार खूब रखें, पर सख्त लहजा भी रखें। एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सख्ती ही उसकी सफलता का कारण बनेगी। आपकी सख्ती ही उसको सफल व्यक्तित्व बनाएगी। देश में, प्रदेश में, जहाँ भी वो जाएगा, आपकी सख्ती, जैसा पटवर्धन सर ने अपनी स्पीच में कहा था कि सबसे सख्त टीचर को ही याद रखा जाता है बड़े हो जाने के बाद। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। मेरा बार बार आपसे यही आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से, सफलता से रहें। स्कूल में बहुत अच्छा निर्माण, पीछे जो हम लोगों की ज़मीन नहीं हुआ करती थी जहाँ आज आपने पार्किंग करी है, इस साल हम लोगों ने वो ज़मीन भी ले ली है, और वो ज़मीन भी अब अपने स्कूल की मालिकी की हो गई है जहाँ आपने पार्किंग करी है। तो धीरे धीरे एक्सपांशन होगा। परम आदरणीय बाबूजी का मंदिर यहाँ बन चुका है। श्रीनाथ जी के चरणों में बाबूजी बैठे हैं। यहाँ से दिन प्रतिदिन अच्छे कार्य आपके बच्चों को मिलते रहेंगे। मैं यहाँ से डायलिसिस का बहुत बढ़िया एक सेंटर चालू कर रहा हूँ, इसी जगह से, जिसका कंट्रोल होगा, जिसमें बच्चों को साथ में धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व करूँगा, उनको मानवीयता और ये सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास रहेगा। डॉक्टर सुरेंद्र दिल्लीवाल जी कार्यक्रम में यहाँ अभी आए थे, जिनको हम हमारी बोर्ड में भी लेने जा रहे हैं। उनके साथ में यहाँ पे डेंटल कैंप निःशुल्क, आसपास के रहवासियों के लिए निःशुल्क डेंटल कैंप महीने में 3 बार यहाँ से लगाना शुरू करूँगा। उसमें भी बच्चों को सिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या चीज़ कितनी आवश्यक है। इसी स्कूल, इसी प्रांगण से महीने में डेंटल कैंप, आई कैंप्स और डायलिसिस के 3 कार्य में इसी महीने चालू कर दूंगा। पहले हम लोगों की जो कैंप्स लगने वाले लग जाएंगे और उसमें बच्चों को सिखाऊंगा। ये जो नैतिक मूल्यों के लिए केंद्र बनाया है मानवीय मूल्य का, यहाँ बच्चों के साथ पढ़ाई की कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ मानवीय मूल्यों पे चर्चा होगी। और हर बच्चे का एक पीरियड, एक क्लास हफ्ते में यहाँ इस सेंटर में लगेगा, मंदिर में, उनके साथ बैठ कर के चर्चा की जाएगी। हम लोग पीछे बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो उनको पढ़ाई और एकेडमिक्स के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बनाए। क्योंकि वर्ल्डली कोई व्यक्ति अगर सफल होता है, उससे कामयाबी नहीं है। वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कितना सफल है, ये उसके एक अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कारों पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ खाली अच्छी पढ़ाई कर लेने से या बहुत सारा पैसा कमा लेने से कोई व्यक्ति सफल हो जाता है। तो मैं इस मंच से दोबारा आपसे वायदा कर रहा हूँ कि हर बच्चे पे पूरा ध्यान रहे, पूरा मेरी तरफ से उसके ऊपर खूब शिद्दत हो, मेहनत हो। मेरी टीम, जो टीचर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी
एडमिशन बंद करेंगे कि अब हम नए एडमिशन लिमिटेड रह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस साल भी कुछ एडमिशन मना करे, चूँकि हमें परिवार, पीछे के संस्कार, हमारी वैल्यूज़ से चलने वाले लोग नहीं थे। पिछले साल मैं बड़ा गर्व से कह पाऊँगा कि हमारी स्कूल की एडमिशन टीम ने बहुत सारे एडमिशन ऐसे आए जिनको कि हमारी टीम ने एडमिशन लेते वक्त ये रिफ्यूज़ कर दिया कि सर ये अभी अगर हम लेंगे तो हमारे बच्चों में हम लोगों ने जो एक्टिविटी डालने का प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिविएशन होगा, क्योंकि ये फलाने स्कूल से या तो फेल होकर के या कम नंबरों के साथ या किसी और कारण से निकाला जा रहा है। तो टीम इतने टफ टाइम से निकलने के बाद भी ये निर्णय ले पा रही है, मुझे बोल पा रही है कि सर इसका एडमिशन नहीं लेना है, तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। आप सबको बधाई देता हूँ। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कार्यक्रम मैंने कल देख लिया है, इसलिए मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया साहब बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन मिले, बच्चों से वो कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको एक सफल पालक होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की बातों में से आपको जो बात आपके दिल को छुई हो और अच्छी लगी हो उसका पालन ज़रूर करें। और कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे बोलना चाह रहे हैं तो मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं स्कूल में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं मुलाकात नहीं हो पाती या मैं सहज ही स्कूल में सुलभ उपलब्ध रहता हूं, तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मेरा वायदा है कि आपके हर एक बच्चे की जवाबदारी जिम्मेदारी मेरी है तो मेरी ही है। उसके लिए मैं जैसा पिछली बार बोला था कि 3 काम करूंगा, मेहनत, कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत, ये तीनों काम करूंगा और आपके बच्चों को अच्छी जगह लेकर के जाऊंगा। जय भारत, जय हिंद। मंदिर सबके लिए ओपन है। अभी तक कई पालक दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें काम अधूरा था, तो आप सब लोग जब भी कार्यक्रम के बाद या जैसा भी आपको जाने का व्यवस्था बने तो मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहें तो आज कल जब भी आप आना चाहें, ये पालकों के लिए मंदिर हमेशा खुला है। आप जब आना चाहेंगे, श्रीनाथ जी का मंदिर आप सबके लिए, आप ही का मंदिर है, आपको संभालना है, आपकी जवाबदारी है, स्कूल आपका है। Thank you so much, sir, for encouraging us. As all of you are aware of the presence of our eminent chief guest, Dr. Satyanarayan Ji Jatia. He was born in Neemuch in Madhya Pradesh. He is member of the Parliamentary Board and Central Election Committee of BJP. He is an agriculturist, lawyer and social worker. He is the senior leader of BJP and also a former central government minister. He acquired his doctorate from Vikram University, Madhya Pradesh. He entered the active politics in 1972 in emergency period. He made his way into the mainstream politics by contesting in 1977 Madhya Pradesh Assembly elections. He has been elected to the Lok Sabha 7 times. He held different portfolios like labor, social justice and empowerment. The Omni family would be truly blessed to hear words of inspiration from you, sir. I request Jatia ji to kindly move towards the stage. हम सब यहाँ पर ओमिनी स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है और वो समर्पण अभी आपने सुना। मैं स्मरण करना चाहूँगा ओम प्रकाश सूरी जी, जो मेरे बहुत ही अपने और आत्मीय रहे हैं। परिवार में निर्मल सूरी जी जो बहन है हमारी, सुमित, हेमंत दोनों ही हमारे भाई, और यह एक अच्छा प्रसंग है कि पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। जयराज सूरी और संस्था को परिवार ने ले लिया है या परिवार ने संस्था को ले लिया है, ऐसा अभी हम देख रहे हैं। हमारे अपने एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमान पटवर्धन जी,
प्रिंसिपल श्री सतीश निरंजनी जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथि और पालकगण और सभी हमारे छात्र और छात्राएं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि संसार की इस सारे रचना में मनुष्य का संस्कारवान होना यह बहुत ही पारंपरिक है और इसको एक वैदिक ऋचा से कहा गया है, ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवितपो उपनिषेद उग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। सभी विद्वान लोगों ने, ऋषियों ने साथ में बैठ कर के राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को सभी राष्ट्रिकों में, नागरिकों में उसको पालन करने के लिए, उसका व्यवहार करने के लिए आग्रह किया। तो वो परंपरा, उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इंदौर में ही पढ़ा हूँ। मल्हार आश्रम रामबाग में एक पुरानी संस्था है जिसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस 24 दिसंबर को। सन 56 में मैं आ गया था यहाँ पढ़ने के लिए और किस तरह से व्यक्ति का निर्माण होता है, वो संस्था का जो अर्धसैनिक स्वरूप था उसकी प्रशिक्षण में हम पले बड़े हैं। तो यह संस्कार का होना प्रारंभ से ही आवश्यक है। मुझे याद है कि मैं प्रारंभ से ही मुझे जिम्मेदारियां मिल गई थी। मैं मॉनिटर था, परेड में लांस कारपोरल के नाते से दायित्व था। बाकी की व्यायाम और बाकी की सारी पद्धतियों में मुझे कुछ न कुछ जिम्मेदारी रहती थी। तो मुझे न इधर देखने का न उधर देखने का कोई अवसर था, न चाव था। सीधे ही चलना, मार्च फॉरवर्ड। और ऐसा करते हुए मैं अच्छा एथलीट हो गया। जिंदगी के ट्रैक पर खड़ा होकर के ऑन योर मार्च, गेट सेट एंड गो, वो अभी तक चल रहा है। तो यह जो अभ्यास है जीवन का, जो प्रारंभ में हो जाता है, वो निरंतर चलते रहता है। मनुष्य का निर्माण, मनुष्य क्या है, हम यदि उसका विचार करें तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जो दिखाई देता है उसका फिजिकल शरीर रूप से दिखाई देता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका जो एकात्म स्वरूप है वो मनुष्य होता है। तो सबसे पहला तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अच्छा है तो सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ हो सकता नहीं। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। जब शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार, स्वस्थ विचार होंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ बुद्धि भी अच्छी होगी। जब बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो उसमें से विवेक, जिसका निर्णय करने की क्षमता रहती है, वो भी अच्छा होगा। और इन सारे सबके अच्छे होने से आत्मा की निर्मलता भी होगी। और हमारे यहाँ कहा गया है कि निर्मल आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो यात्रा चलती है व्यक्ति के निर्माण की, प्रारंभ में जब शिशु होता है तो उसको शिक्षण करने के लिए माँ से प्रारंभ होता है। वो पहला उच्चारण माँ से ही करता है, सीखता भी घर में ही है। यदि उसको न सिखाया जाए तो वो कुछ सीखेगा नहीं, और यदि सिखाया जाए तो सब कुछ सीख लेगा। हमने देखा है कि कुछ ही, जैसे ही वो बोलना कोई सीखता है और उसको कुछ अच्छी बातों का स्मरण कराना का उपाय किया जाता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। हमने देखा है कि प्रवचन करने में भी कम उम्र के जो प्रवचनकार होते हैं उनको प्रारंभ से ही वो शिक्षा दी जाती है।
अब उस वक्त वो कितना समझता होगा, कितना जानता होगा, ये विषय नहीं रहता है। पहले तो वो उसको बोलता है, जब बोलेगा, बार बार बोलना है तो फिर उसको समझेगा भी। पर पहले तो उच्चारण होते आना चाहिए। उच्चारण होने के बाद जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होती जाएगी, उसका भाव को समझते जाता है। हम जब पढ़ते थे तब भी कुछ बातें नहीं समझ में आती थी, तब भी उसको हम अपने संज्ञान में ले लेते थे। जब अगली कक्षा में जाते थे तो वो समझ लेते थे। अब ये जो समझना है, ये व्यक्तिशः समझना होता है, किंतु साथ में मिला करके यदि हम समझते हैं, यानी घर में भी बच्चे पढ़ सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी पढ़ सकते हैं, किंतु जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो कुछ अलग प्रकार से उसमें विकास होता है। और ऐसा विकास होता है कि जब बच्चे समूह में आते हैं तो समूह में रहना सीखते हैं, और समूह के अंदर जो कुछ उपलब्धियां होती है, वो उपलब्धियां उसको सहज रूप से मिल जाती है। जैसे कि हम अलजबरा में a+b करते हैं, या a को b से जोड़ते हैं तो a+b ही होता है, किंतु a+b बना करके उसको कोष्टक में, ब्रैकेट में डालकर उसका स्क्वायर करते हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ अलग होता है। और यदि इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² हो जाएगा, किंतु उसमें इंडिविजुअल को छोड़ करके हम सामूहिक रूप से कुछ करेंगे तो वो a² + b² + 2ab आ जाएगा। ये जो 2ab है, ये संस्थागत समूह में रहने का परिणाम है। और ये जो परिणाम है, यह जो उपलब्धि है, वो संस्था के साथ में रह करके संस्कारों के कारण से होती है। ऐसे ही समीकरणों में हम देखेंगे तो जब मिलने का काम होता है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन उसको मदद करती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, तो निश्चित रूप से एक की ज्वलनशीलता है और ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करती है। किंतु किसी सर्टन प्रेशर और उस पर उनको मिलाया जाए तो H2O बनता है, और H2O बनता है तो पानी बन जाता है। तो जो ज्वलनशीलता है, जो मदद करने वाली बात है, वो पानी बनकर को उसको बुझा सकती है। तो इस प्रकार से यह जो हमारे अपने शिक्षण की पद्धति में निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के अपने, जैसा मैंने कहा कि प्रिंसिपल और बाकी के जो एडवाइज़र और लोग हैं, वो उन सारी बातों पर बहुत बारीकियों से नज़र रखने का काम है। बच्चों का विकास करने के लिए उसकी हॉबी क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, किस तरफ वो जाना चाहता है, तो उस वृत्ति को पहचान करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अब जैसे बच्चा कोई अच्छा स्पोर्ट्स में है, तब स्पोर्ट्स में जाने उसकी स्टेमिना है, तो स्टेमिना होने के नाते से वो कहाँ जा सकता है, कौन से खेल में आगे बढ़ सकता है, उस प्रकार से उसका प्रशिक्षण करने का काम किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं, जैसा मैंने कहा कि शिक्षण की विधा में कोई और पुस्तकीय ज्ञान, एकेडमिक ज्ञान को लेकर के ही आगे बढ़े, पढ़ते पढ़ते डिग्री हासिल करे, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए उसका, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाने के बाद और डॉक्टरेट हो जाए उसकी, और आगे बढ़ जाए। परंतु कुल मिलाकर के ये जो शिक्षा का जो रास्ता है, उसमें कोई डिग्रियां प्राप्त करना ये लक्ष्य नहीं है, और इसलिए उसमें कितनी योग्यता आती जाती है, क्षमता कितनी विकसित होती है, और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा का काम। तो इसलिए शिक्षा में आ जाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ शिक्षा में आ जाने के बाद यदि संस्कार नहीं हुए तो अहंकार आ जाता है। पर शिक्षा का अर्थ ही है, हमारे यहाँ तो कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या विनयन शोभते, विद्या से विनय को प्राप्त करना है। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, और विनय से ही पात्रता मिलती है। यदि आदमी विनय न करे, विद्या का अहंकार करे, तो उसकी पात्रता और निश्चित रूप से उसकी पात्रता जो है एकदम प्रश्नवाचक हो जाएगी। तो विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और उसके बाद उसको मिलता है। हमारे यहाँ तो 4 पुरुषार्थों की कल्पना भी की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये जो धर्म है, लोग धर्म को धर्म मानते हैं, पर धर्म तो दायित्व है, धर्म तो सेवा का संकल्प है, धर्म तो एक आचरण है, और धर्म के माध्यम से फिर हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अर्थोपार्जन करने का काम करें, फिर हमारी कामनाएं उससे पूर्ति हो जाए, इच्छाएं पूर्ति हम करें,
व्यक्ति की करें, परिवार की करें, समाज की करें, राष्ट्र की करें और समष्टि की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का उपाय। और उसके बाद धनादत आरंभम, जैसा हमने कहा तथा सुखम, उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष, उससे मोह भंग हो जाए। ये जो मोह जो है हो जाता है, चाहे अभिमान का, अहंकार का, पदों का जो मोह हो जाता है, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता है। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निजन के सृजन में निराशा की आशा है, विवश के सामर्थ्य में मरण मृत्यु का है। इसलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है, मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है तो चेतना, संवेदना मनुष्यता है। तो ऐसे संवेदनशील मनुष्य का निर्माण करना, ये संस्थागत उपाय करना, संवेदना नहीं तो फिर मनुष्य कुछ है ही नहीं। और इसलिए मनुष्य के संवेदना, यदि कोई कष्ट में है, कोई तकलीफ में, जैसा भी कहा है ना, कोविड हो रहा था, अब कोविड हो रहा है तो कोविड में किसी को कोई अता पता ना ठिकाना, मर के गया तो मर के कहाँ जाना, चला गया। परंतु ऐसे समय में भी जो कुछ लोग थे, कोविड योद्धा थे, ऐसे लोगों ने अपने परिवारों के साथ जो उनका जो बंधन था उसको छोड़ करके भी सावधानीपूर्वक जो सेवा करने का काम किया है, ऐसे लोगों ने कितने ही लोगों की ज़िंदगियों को बचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो लोग बच गए हैं अभी, उसको किसी ने बचाया होगा। और यदि किसी ने बचाया है तो उस उपकार के बारे में हमको स्मरण करना चाहिए, और उस उपकार का स्मरण करके वो संस्कार हम में भी आना चाहिए। यदि हमको किसी ने बचाया है तो हम भी किसी को बचाएं, क्योंकि ये जो ऋण है समाज का, उसको चुकाने का मौका किसी भी प्रकार से हमको प्राप्त करना है। तो यह आज का ये अवसर शिक्षा का ही क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है। अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, और जैसा मैंने कहा है कि जिसकी जैसी स्किल है, जिसमें जिसका कौशल है, उस कौशल का विकास करना। कुछ अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा साहित्यकार हो सकता है। तो ये जो सारी विधाएं हैं, उन सब का महत्व है। पर हम जानते हैं कि अर्थ प्रधान युग है। यस्यास्य वित्तम स नरकुलीनः स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। तो सारे लोगों का, समाज का सारा यदि विचार ही अर्थ हो जाएगा तो सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और इसलिए कुछ लोग ऐसे होना चाहिए कि अर्थ के बाद उसका त्याग करने का काम करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो ईशावास्य में, उपनिषदों में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जर्रे जर्रे में उसकी जिस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जब हम देख रहे हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर थे सब जो उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, परंतु छोटे बड़े की भावना उसके काम करने की वृत्ति के आधार पर यदि मान लेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके प्रति अन्याय करेंगे, बेइंसाफ़ी होगी उसके साथ। और इसलिए काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे भी छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते, मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते, और मैदान जीतने से मन भी नहीं जीते जाते। और इसलिए जो कुछ उपलब्धियां हो रही है, ये मैंने ही प्राप्त कर ली है, ऐसा अहंकार किसी को हो जाए तो निश्चित रूप से वो दिशा ठीक नहीं है। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा राष्ट्र का निर्माण है, उसकी एक विधा ये विद्यालय है। राष्ट्र का निर्माण करना है, इसको परम वैभव पर ले जाना है, उसको विश्व गुरु बनाना है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष हमारा निश्चित रूप से सांस्कृतिक और आस्थाओं का देश है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। इसका जवाब इस संस्था से, ओमनी संस्था से हम देने के लिए अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस सिद्धता में निश्चित रूप से
आप सबका योगदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, धीरता, धैर्यपूर्वक। सारे काम जल्दी में नहीं होते हैं, संयम से होते हैं, और इसलिए संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहुं और दिग दिगंत में। आज विश्व गगन में कीर्ति की पताका को फहराने के लिए भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारी पहचान बढ़ रही है, वो पहचान को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के उपाय किए गए हैं, आज अमेरिका होगा, रशिया होगा, चाहे यूके, चाहे फ्रांस, चाहे जापान, आज सब देशों की निगाहें भारत के ऊपर है। तो ये जो भारत का अस्तित्व, भारत का जो एक तरह से हमने स्वाभिमान खड़ा करने का काम किया है, उस स्वाभिमान को बढ़ाने में, वृद्धिगत करने में निश्चित रूप से संस्था का भी योगदान होगा। और आने वाले समय में जब विद्यार्थी निकल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जहाँ एक तरह से संस्था के स्वाभिमान के परिचायक होंगे, वो राष्ट्र के स्वाभिमान के भी परिचायक बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से यह जो संस्था का क्षितिज बना है, उस संस्था के क्षितिज से मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यह अपेक्षा करता हूँ कि यह संस्था अपने सारे मनोरथ में सफल हो और यहाँ के विद्यार्थी निकल करके दुनिया में अपना नाम रोशन करें। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सजन की साधले हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। निश्चित रूप से हम सब अपने समाज के लिए और अच्छा काम कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दुख और शोक। इस शुभ भावना के साथ आप सबका पुनश्च अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मृदु वचन हमारे विद्यार्थियों के जीवन को उजाला देंगे, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, जल्दी में काम नहीं होता, धैर्य और धीरज रखना चाहिए। ये हमारे विद्यार्थियों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।